नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभर, रोहतक, हरियाणा. Today I will give my presentation on pharmacology of drugs for constipation treatment. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Today we will talk about constipation. In constipation, the person or the patient passes the feces less frequently. He may pass the feces once in 2 to 3 days, 2-3 days or 4 days or more. So when he does not pass the feces daily, he feels pain or difficulty in the passage of feces, as he is having the hard and stiff stool. So in the anus part, in the rectum part, there will be pain will be there. मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं कब्ज की. कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज है. इसमें जो व्यक्ति है या जो मरीज है वो जो है फीसिस जो पास करने के लिए, मतलब अपने को फ्रेश होने के लिए 3-4 दिन में या 2-3 दिन के बाद जाता है, डेली नहीं जाता, जिसकी वजह से जो है उसको जब वो फीसिस पास करता है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है, दर्द होता है, क्योंकि जो स्टूल है वो सख्त होता है और जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आती है. What are the factors responsible for constipation? Constipation may be due to so many factors. Some of the major factors are when the person is having less fiber in his diet or her diet. There is inadequate liquid drinking, fasting, or he is having some kind of tension, or he is having irregular diet, or the timing of food is not at the appropriate time, irregular timing, or certain diseases are there, certain disorders are there which leads to tension, or irregular dieting is there, or there may be the patient may be taking various medicines and the medicines side effects may be there which leads to constipation. कब्ज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि जब पेशेंट जो खाना खाता है उसमें फाइबर की कमी हो. जैसे जो अगर वो गेहूं खाता है और उसको छान लेता है, मैदे की चीज़ खाता है, तो उसमें जो है फाइबर जो है कम रहता है. फ्रूट्स वगैरह कम खाता है या अपना पानी कम पीता है, दिन में व्रत ज़्यादा रखते हैं, या कि उसको कोई टेंशन हो रखी है, कोई चिंता है जिसमें वो सारा दिन जो है वो खाना नहीं खा पाता, या उसकी जो वर्किंग शेड्यूल ऐसा है कि वो जो है अपना खाना टाइम से नहीं खा पाता, या उसको कोई बीमारी है जिसमें जिसकी उसको टेंशन है, या बीमारी की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन जो है एज जो है वो दिक्कत आती है, कब्ज होती है, या वो कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहा है जिन दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से कब्ज हो जाती है. तो जो ड्रग्स हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली 2 कैटेगरीज आर देयर. वन इज़ द लैक्सेटिव्स एंड अनदर वन इज़ परगेटिव्स और कैथार्टिक. इन लैक्सेटिव्स जो है लैक्सेटिव्स वो ड्रग हैं जो कि दैट लीड्स टू सॉफ्टर एक्सपल्शन ऑफ स्टूल को पास करने के लिए उसको जो है सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे कि स्टूल आसानी से पास हो जाता है. तो जो डिफ़िकल्टी होती है, हार्डनेस होती है, वो उसको सॉफ्ट कर देते हैं. परगेटिव्स या कैथार्टिक जो है ये दे आर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर. दे फोर्सफुली एक्सपेल द स्टूल. The stool will not remain in the rectum portion and it will be expelled out. So these are the 2 categories. Now coming to the individual drugs, if we talk about the classification of drugs for constipation based on the mechanism of action or based on their actions, the drugs are classified into 4 categories. First is the osmotic purgatives.
which are having this osmotic action like lactulose, sodium phosphate, magnesium salts like magnesium sulfate, magnesium hydroxide. Then stool softeners, second category, in which we have the drugs like liquid paraffin or docusets. Then bulk forming drugs like isabgol की भूसी आती है, सीलियम है, मिथाइल सेलुलोज है, ब्रान है. Then we have the purgatives like senna, bisacodil, sodium picosulfate. So these are the drugs. To start with the first category, that is the osmotic purgatives. Osmotic purgatives क्या है? By the mechanism of osmosis, they absorb water and in the large intestine, and जो है osmotically they absorbs the water. they जिसकी वजह से जो बाउल में जो स्टूल है उसके जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाएगी. जब वो हमारे जो रेक्टम है उसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी पहुंच जाती है फ्लूइड्स की और वो जो स्टूल का कंटेंट, तो विल हैव द फील टू अर्ज टू पास द फीसिस, एंड फीसिस विल बी इजीली पास आउट by their osmotic action. That's why the name osmotic purgatives. इसमें आती है ड्रग जैसे लैक्टुलोज है. लैक्टुलोज क्या है? जैसे नाम ही है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डाइसैक्राइड्स, सेमी सिंथेटिक है. लैक्टू मीन्स लैक्टोज और साथ में फ्रक्टोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज मिलके एक सेमी सिंथेटिक डाइसैक्राइड बनाते हैं. ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहता है. ये ऑस्मोटिकली जो है जब ये हमारे इंटेस्टाइन में या स्टोमक में एब्जॉर्ब नहीं होते और जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचते हैं तो ये जाके वहाँ पे ब्रेक होते हैं और वहाँ पे जो है ऑस्मोटिकली जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो स्टूल है उसको जो है सॉफ्ट फॉर्म में बनाते हैं, जिससे कि पर्सन विल पास आउट द फीसिस. देन सिमिलर टू लैक्टुलोज इज़ द लैक्टिटॉल है, वो भी उसका भी सिमिलर एक्शन है जैसे लैक्टुलोज है. देन वी हैव द सोडियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं. ये जो है जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में जो है कोलसिस्टोकाइनिन जो है उसको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और जो सिक्रीशन है वो मतलब सिक्रीशन मतलब जो वाटर रिलीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इनका परगेटिव एक्शन हो जाता है, मतलब स्टूल पास होता है. सेकंड कैटेगरी है हमारी स्टूल सॉफ्टनर्स की. जैसा कि नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो है ड्रग्स स्टूल को सॉफ्ट करती हैं. जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज है, उसमें स्टूल जो है हार्ड है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है जब वो रेक्टम से एनस से निकलती है तो जो है वहाँ से वो उसको छीलती हुई, स्किन को छीलती हुई निकलती है, बहुत दर्द होता है. तो उसको जब ये सॉफ्ट कर दे, ये ड्रग्स जो है उसको सॉफ्ट कर देती हैं, लुब्रिकेट कर देती हैं, जिससे कि वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है. जैसे लिक्विड पैराफिन है. लिक्विड पैराफिन जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ जाता है स्टूल के ऊपर, एक जो है लुब्रिकेंट की तरह जो है एक लेयर बना लेता है, जिससे वो स्मूथली पास आउट हो जाते हैं. सेकंड कैटेगरी, इस कैटेगरी में सेकंड ड्रग है डोकुसेट्स. डोकुसेट्स क्या है? इट इज़ बेसिकली डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट. ये एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट होता है. ये अपने डिटर्जेंट एक्शन के द्वारा जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो वाटर है या जो दूसरे कंटेंट है वो जो स्टूल बना हुआ है उसके अंदर जो है वो वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ड है स्टूल वो सख्त है, उसमें जब वाटर चले जाएगा तो वो जो है सॉफ्ट हो जाता है और वो इजीली जब पास होगा तो वो सॉफ्ट होके बाहर निकल जाएगा. देन थर्ड कैटेगरी है, जैसा कि नाम इटसेल्फ इज बल्क फॉर्मिंग ड्रग, या इनको बल्क परगेटिव्स भी कहते हैं.
ये जो है नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, जब पेशेंट है पानी कम पीता है, डाइट कम लेता है, तो उसकी जो जो भी स्टूल फॉर्मेशन है उसकी कंटेंट इतना नहीं होता कि वो पर्सन विल हैव द अर्ज टू पास द फेसेस। तो ये जो ड्रग्स हैं ये जो है दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ये डाइटरी फाइबर्स है बेसिकली, जो हम निकाल देते हैं। जैसे एक नॉर्मल गेहूं का आटा है और एक मैदा है। मैदा जो है वो बारीक पिसा हुआ है, उसमें फाइबर नहीं है। या आजकल जैसे फाइव ग्रेन्स का आटा आता है जो फाइबर वाला आटा है। तो उस तरह से ये जो है जो डाइटरी फाइबर है वो, ये ड्रग्स वो डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहाँ वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, फूल जाती हैं और जो है फीसिस का जो है वो वाटर कंटेंट बढ़ाती हैं और उसको सॉफ्ट करती हैं। और जो है आगे जो है पर्सन विल है उसमें इतना कंटेंट हो जाता है फीसिस का कि पर्सन विल फील द अर्ज टू पास द फीसिस। और बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं इनका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे अब ये है ईसबगोल है, ईसबगोल की भूसी है। ये जो है ये जो वेजिटेबल फूड्स हैं ये हमारे जो है जो सीलियम है या ब्रान है, ये जो है रेजिडुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्लोर इंडस्ट्री के, जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो ये जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहती है पेशेंट्स को जो सिंपल कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन ये है कि क्योंकि इनका कोई स्वाद नहीं होता तो इसके जो है इन ड्रग्स को हम जो है पानी के साथ या जूस के साथ या उसके साथ देते हैं, रात को सोने से पहले लेते हैं और उसके बाद 3-4 दिन तक लेंगे तो फिर जो है उसकी कंडीशन में सुधार होता है। जो आपका ईसबगोल है वो बेसिकली क्या है कि नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज है जो कि जिलेटिनस मास बनाता है वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, जिसकी वजह से जो फीसिस हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मिथाइल सेलुलोज है, ये एक सेमी सिंथेटिक कोलाइडल हाइड्रोफिलिक डेरिवेटिव है, नाम है सेलुलोज। तो जो है सेलुलोज का जो है डेरिवेटिव है और ये भी जो है जब लेते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करके सेम जो है बल्क बनाता है और जो है वो पर्सन विल फील द अर्ज टू पास द फीसिस। देन आते हैं जो लास्ट कैटेगरी है हमारी परगेटिव्स की। ये बड़े ही जो है पावरफुल जो है रिलीफ देते हैं। सबसे पहले जो है इनमें जो सबसे वाइडली यूज ड्रग है दैट इज़ द सेना। सेना जो है वो लीव्स एंड पॉड्स का है, एक कैस्केरा सेग्रेडा नाम का जो है पौधा है, उसकी जो बार्क है उसको पाउडर करके जो है बनाई जाती है। और जो है इसको जब हम लेते हैं तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अब्जॉर्ब नहीं होती। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो इसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक एंथ्रोल करके होता है, वो जो है बेसिकली उसको जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको इरिटेट करता है या फिर थोड़ा बहुत जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है तो ये वापस फिर जाता है और फिर जो है बाइल में से एक्सक्रीट होता है। अल्टीमेटली फिर जो है ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करता है। तो जिसकी वजह से जो देयर विल बी बिसाइड्स दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करने के अलावा ये जो है वाटर की जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाता है, जो वाटर या सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन है कोलन में जो है उसको कम करता है और अल्टीमेटली दे विल फोर्स द फीसिस आउट। ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें जो अपना एक सिंथेटिक प्रोडक्ट आता है दैट इज़ द बिसाकोडिल, उसकी टैबलेट बहुत वाइडली यूज़ होती है। ये जो है सिंथेटिक डाइफिनाइल मीथेन है जो परगेटिव है। ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है और बाइल से एक्सक्रीट होता है और जो है इंटेस्टाइन में भी ये जो है एक्टिवेट फॉर्म में आता है और ये भी जो है अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन का मुकोसा है उसको इरिटेट करता है। तो ये जितने परगेटिव्स हैं ये उसको इरिटेट करके लार्ज इंटेस्टाइन को जो मुकोसा है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है
इंटेस्टाइन की, उसको ये जो है इरिटेट करते हैं, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो है जो फीसिस हैं वो बाहर जो है फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है। देन थर्ड जो है हमारा सोडियम पीकोसल्फेट है, ये भी बिसाकोडिल से रिलेटेड है। ये भी जो है इंटेस्टाइन में जो है हाइड्रोलाइज होता है और फिर वो इरिटेट करता है मुकोसा को, और जो है जिसकी वजह से बॉल मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से परगेटिव्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाते हैं। जो ऑस्मोटिक परगेटिव्स हैं और जो है वो माइल्ड एक्शन है उनका। स्टूल सॉफ्टनर्स का भी माइल्ड एक्शन है, बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स का भी माइल्ड एक्शन है, लेकिन परगेटिव्स जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन है। वेयर एवर बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट टू पेशेंट जो है डिफरेंट जो ड्रग्स कैटेगरी की कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है। So that's all about the pharmacology of drugs for constipation treatment. In case you further require any more information, feel free to contact me. My mobile number and email is given in this presentation. And I once again thankful to Mr. Ashish Sani, my son, who helped me in typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day.